سب کی سلامتی ہو۔ آج کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا باپ نے آج پھر فضل بخشا تاکہ ہم سب مل کر اس کی ہیکل کے اندر اس کی حمد و ستائش کر سکیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں اور اپنی روحوں کی نجات، بحالی، شادمانی کے لیے اس کے کلام کی رہنمائی کو لے سکیں۔ ہم خدا کے اس بھاری فضل کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر نکالیے گا متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 8 آیت پڑھنے میں کوئی رہنمائی کر دے۔ آمین آمین۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم نے کلام اقدس میں سے دیکھا کہ پس توبہ کے موافق کیا لاؤ۔ یہاں پر متی جو خدا کا رسول ہے وہ مخاطب ہو رہا ہے اپنی قوم کے ساتھ اور وہ کہہ رہا ہے کہ پس توبہ کے موافق کیا لاؤ، پھل لاؤ۔ وہ اس چیز پر زور دے رہا ہے کہ توبہ جو ہے اس کے موافق کیا ہم نے لانا ہے، پھل لانا ہے۔ توبہ کا مطلب آج ہم سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھتی بھی رہوں گی، اور کلام سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گواہی یہاں پر دینا چاہوں گی کہ جنوری کے بعد جب ہم کچھ منتھ آگے بڑھے اپنی میٹنگ کو لے کر، تو مارچ اور اپریل کے اندر میں نے اسی مذبح پر کلام سنایا آج سے 2-3 ماہ پہلے، اور میں نے ایمان کی زبان کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر ایک بات کہی تھی۔ جو لوگ یہاں پر موجود تھے پینتیکوست کے دن، ان کے درمیان میں نے بتایا تھا کہ میں ایمان میں ایک چیز کو بولتی ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں مہینوں کے اندر خدا ہمیں فائنینشلی بلیس کرے گا اور چرچ کے لیے خدا ہمیں چیزیں مہیا کرے گا۔ آمین۔ اور آج جب میں سیکنڈ ٹائم اس جگہ پر کھڑی ہوں تو میں نے اس بلیسنگ کو دیکھا ہے۔ آئیں ایمان کے اس اظہار کے لیے اور خدا کی وفاداری کے لیے بھرپور تالی بجائیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم ایمان سے مانگو گے، ایمان رکھو کہ تم کو مل گیا ہے اور تم کو مل جائے گا۔ اس بات کو لیتے ہوئے ہم نے اپریل کے مہینہ کے اندر خدا کے کلام کو سیکھا تھا روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں، کہ روح القدس کی نعمتیں آپریٹ کیسے ہوتی ہیں اور 9 نعمتوں کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہم نے سیکھی تھی وہ حکمت کی نعمت تھی۔ ہماری ٹیم کو پتہ ہے، اور آج میرا دل نہایت خوشی سے شادمان ہے کہ خدا جو کچھ کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ آمین۔ اسی ایمان کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنے کلام کی طرف جائیں گے اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ توبہ کے موافق کیا لاؤ، پھل لاؤ۔ لفظ توبہ جو ہے اس کے میننگز کیا ہے؟ آج ہم عبرانی زبان کے اندر اس کے 3 لفظوں کے بارے میں سیکھیں گے جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں پر میں ساتھ میں آپ کو شامل کروں گی۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک جی بھائی، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، کیا مطلب ہے توبہ کا؟ اچھا جی بھائی، اقرار کرنا۔ جی باجی، توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا مطلب ہے کہ اچھے کام کرو، ہاں، کوئی کچھ کہتا ہے برداشت کرو۔ اچھا چلیں، آج ہم توبہ کے صحیح میننگز دیکھیں گے جو کلام اقدس کے مطابق ہے۔ لفظ توبہ کا مطلب ہے پچھتانا۔ اگر ہم اس کو عبرانی کا ہم 3 لفظوں کو سیکھیں گے۔ عبرانی کا جو پہلا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو لکھ سکتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے ناہوں۔ عبرانی زبان کے اندر توبہ کو کہتے ہیں ناہوں، جس کا مطلب ہے پچھتانا، توبہ کرنا، باز آنا، رجوع لانا اور خدا کی طرف اپنے روح کو پھیر لینا اور اس کی طرف متوجہ ہو جانا۔ جو پہلے لفظ کا میننگ ہے وہ کیا ہے؟ پچھتانا، توبہ کرنا،
इसके दूसरा जो लफ्ज है उसका मतलब है शुभ, यानी कि फिरना, वापिस आ जाना, यानी गुनाह की तरफ से हट जाना और अपने आप को खुदा के ताबे कर देना। ये शुभ का मतलब है जो इब्रानी में लफ्ज है तौबा के लिए इस्तेमाल हुआ। मगर सबसे खूबसूरत मीनिंग्स इस लफ्ज के अंदर है जो लफ्ज है मेटानोया, जिसका मतलब है असल नीयत और रवैये की तब्दीली, यानी कि अपनी नीयत को खुदा की हजूरी में रखकर पाक और साफ करना और अपने तमाम गुनाहों का इकरार करके अपनी पुरानी इंसानियत को मार डालना और फिर से जिंदा होकर यीशु मसीह के साथ वफादारी में हर रोज चलना। ये तीनों लफ्ज बुनियादी लफ्ज है, मगर जो तीसरा लफ्ज मेटानोया है ये अपनी मीनिंग्स के अंदर बड़ी पावर रखता है, क्योंकि इसके अंदर असल में हमारी नीयत, हमारे रवैये, हमारे किरदार, हमारे चाल चलन, हमारे बोल चाल की मुकम्मल तब्दीली इसके अंदर आकर जम हो जाती है। और यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है कि गेहूं का दाना जब तक मरता नहीं है जमीन पे गिर के वो फल नहीं आता। जब तक हमारे रवैयों के अंदर तब्दीली नहीं आती, ये नहीं है कि इबादतों के अंदर आकर, चर्चिस के अंदर आकर हम वक्ती तौर पर दुआ के अंदर ओ मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, उसी पछतावे की रूह को लेकर बार बार इकरार करना और आकर इकरार करके खुदा की हजूरी में लुत्फअंदोज होकर फिर से चले जाना और उसी काम को करते रहना, ये ठीक तौबा नहीं है। पहली तौबा जो मीनिंग मैंने बताया वो है नाहूम। जो पहली तौबा है उसका मतलब है पछताना। अक्सरियत के अंदर अगर हम देखें कलीसियाओं के अंदर, घरों के अंदर, खानदानों के अंदर लोग पछताते हैं कि मैंने ये गुनाह क्यों किया, चाहे वो उसका इजहार करे ना करे, मगर अपनी ही रूह के अंदर वो घुटते रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, वो अपने गुनाहों की वजह से पछतावों की रूह का शिकार हो जाते हैं और अक्सर वो रजू लाना भी चाहते हैं, मगर पछतावों की रूह उनके अंदर इस तरह से काम करती है कि वो उनको फेलियर पर्सनैलिटी बनाती रहती है। और जब वो खुदा की हजूरी में आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम खुदा के साथ जुड़ जाएं, मगर उनकी असल नीयत जो होती है वो उस तौर से उस जगह पर नहीं आती जिसकी वजह से वो पछतावों की रूहों के अंदर गिरफ्तार रहते हैं। और वो समझते हैं मैं जब खुदा की हजूरी में आता हूँ, मैं तौबा करता हूँ तो शायद मेरी तौबा क्या हो गई है, कबूल हो गई है। मगर ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तौबा का मतलब क्या है, पछताना। जब शुभ लफ्ज को हम देखते हैं तो उसका मतलब है फिर से लौट आना, यानी कि जिस खुदा की कुर्बत से हम दूर जा चुके हैं, फिर से उसकी कुर्बत में आने के लिए अपने रुख को क्या करना, चेंज करना। जैसे ये खुदा है और मेरा रुख इस वक्त में खुदा की तरफ से दूसरी तरफ है, और जब मैंने तौबा का इकरार किया है तो मैंने अपना रुख किसकी तरफ कर लिया, खुदा की तरफ कर लिया है। और इसका मतलब है कि मैं वापस लौट आई हूं, और लौटने का मतलब है कि मुसलसल फिर खुदा के साथ चलते रहना। और तीसरा लफ्ज है शुभ, जिसका मतलब है नीयत और रवैये की तब्दीली, यानी कि जो कुछ आपने चर्च के अंदर, खुदा की हजूरी के अंदर, चाहे आपने शख्सी मसबा पर बैठकर अपने गुनाहों का इकरार किया है, तो आप खुदा से रहनुमाई लेकर अपनी नीयत और अपनी आंखों को, अपने दिल को, अपनी सोचों को पाक और साफ करते चले जाएं। आप कहें खुदावन मेरी नीयत के अंदर और ज्यादा पाकीज़गी को ला, मेरी आंखों के अंदर और ज्यादा पाकीज़गी को ला, क्योंकि मत्ती की अंजील में लिखा है कि अगर तेरी आंख पाक है तो तेरा सारा बदन पाक है। तो वो कहता है कि अगर तेरी आंख पाक है तो तेरा सारा, ते अगर तेरी नीयत दे विच खराबी है तो तेरी अख भी की है। अगर तेरी आंख खराब है तो तेरा सारा बदन ही खराब है, क्योंकि तेरी नीयत के अंदर क्या है, गुनाह की शरिस्त मौजूद है। तूने अपने गुनाह की शरिस्त को मारा नहीं है, तूने मुकम्मल तौर पर अपना खुदा के ताबे नहीं किया। क्योंकि हमने जी यूहन्ना की इंजील निकाले, यहाँ पर हमने देखा है यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत, जरा खोलिएगा, जल्दी से पढ़ दें, हम आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग मेरे साथ मिलकर बोलें,
बस तौबा के मुआफिक फल लो, बस तौबा के मुआफिक फल लो। जी, यूहन्ना की अंजील, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फल लाने का एक प्रोसेस है। यहाँ पर वो कहते हैं कि गेहूं का दाना जब तक जमीन पर गिर कर मर नहीं जाता वो फल नहीं ला सकता। आप जब तक कंप्लीटली अपना दिल, रूह, बदन, जान खुदा के कलाम के अंदर, उसके सांचों के अंदर और अपना आप इस कलाम के अंदर गिरा नहीं देते, इस कलाम के अंदर उतर नहीं जाते, तब तक आप फल नहीं ला सकते। जी पढ़ दे, जल्दी से पढ़ दे। यूहन्ना उसका 12 बाब और उसकी 24 में। जी जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। आमीन। यहाँ पर गेहूं के दाने की खुसूसियत ये है कि ये सब नाजों में से बड़ा डिफरेंट सा बीज है, और इसके अंदर ये खुसूसियत है कि जब एक गेहूं का दाना जमीन में गिरता है और उसके बाद जब उसकी कॉम्पल निकलती है तो उसके अंदर 60 से 100 गुना दाने लगे होते हैं जो दूसरों के लिए फायदेमंद ठहरते हैं। तो तौबा जो है, इंसान की तौबा, ये जब तक वो अपने पूरे बदन को खुदा के कलाम के अंदर डाल नहीं देता तब तक उसकी तौबा कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पर जब गेहूं का दाना जमीन के अंदर गिरता है, गिरने के बाद उसका राब्ता दुनिया के साथ कट जाता है। पहला काम क्या होता है? दाना जब जमीन में बो दिया जाता है तो दुनिया के साथ उसका राब्ता क्या होता है? खत्म हो जाता है। जब वो दाना जमीन के अंदर चला जाता है और जाने के बाद उसको ऊपर से ढांप दिया जाता है, अब जो वो दाना जमीन के अंदर है तो वो दुनिया से कटा हुआ है, वो दुनिया के मामलात से कटा हुआ है, वो दुनिया की रोशनियों के अंदर से खत्म हो चुकी है। वो रोशनियां उस दाने तक नहीं पहुंच रही, वो हवाएं उस दाने तक नहीं पहुंच रही, और वो दाना जमीन के अंदर दब जाता है। और उस जगह पर जब वो दब जाता है तो दुनिया के सारे मामलात उससे कट जाते हैं। वो अब दाना जब जमीन के अंदर जाता है तो वो अंधेरे के अंदर होता है, वो उस जगह पर बहुत ज्यादा तारीकी के अंदर होता है, वहां पर हब्स होती है, वहां पर बहुत सारी जो मट्टी के अंदर खुशबुएं हैं वो उस दाने को अंदर से काट रही होती हैं। और गिरने के बाद जब वो कट जाता है दुनिया से तो पहला काम क्या होता है? जमीन के अंदर से ही वो अपने लिए नमी को लेता है। अगर कोई ईमानदार दुनिया के कामों से कट जाता है और वो यीशु मसीह की तालीम पर अपना ध्यान लगा लेता है तो खुदा उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। जिस तरह इस दाने को अंदर से, मट्टी के अंदर से क्या मिल रही होती है? ऑक्सीजन मिल रहा होता है, हवा मिल रही होती है, उसको अंदर से नमी मिल रही होती है। और दुनिया से कटने के बाद सबसे पहला प्रोसेस इस दाने के साथ क्या होता है कि इसकी जो सख्त झिल्ली है, जो उसका खोल होता है दाने के ऊपर, जैसे चने का दाना होता है, अगर कोई भी किसान उसको जमीन के अंदर डाल देता है तो जो चने का दाना होता है उसके ऊपर से पहले खोल उतर जाता है। इसी तरह से जब कोई इंसान खुदा के कलाम के अंदर आ जाता है उसकी जिंदगी के ऊपर से सख्तियां खत्म हो जाती हैं। हालेलुया। तौबा का पहला अमल कि वो शख्स हलीम हो जाता है। तौबा का पहला अमल कि वो अपने अंदर से दुनिया की तमाम सख्तियों को क्या कर देता है? निकाल देता है। उसके ऊपर से गुरूर खत्म हो जाता है, उसके अंदर से नरमी और उसके अंदर से फ्रूट निकलना शुरू हो जाता है। जब कोई इंसान यीशु मसीह को अपना आप दे देता है और तौबा के मुआफिक क्या लाता है? फल लाता है। अब यहाँ पर जब वो कट जाता है, उसके ऊपर से सख्ती उसकी खत्म हो जाती है, तो फिर उसके बीज के अंदर से नरम सी कोंपल निकलती है। उसके अंदर से जब वो कोंपल निकलती है तो उसको फ्रूटफुल करती है। इसी तौर से जब हम अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा के कलाम के गहरे भेदों को लाते हैं, हम खुद को खुदा के कलाम के अंदर डाल देते हैं, खुद को गिरा देते हैं कि खुदावंद अब तू ही मेरा सोर्स है, तू ही मेरा सब कुछ है,
करना शुरू करता है और रूहानी तौर पर खुदा हमें फ्रूटफुल करता है। आमीन। बस तौबा के मुआफिक फल लो, बस तौबा के मुआफिक। अगर आपने तौबा कर ली है तो आपकी जिंदगी के अंदर फिर क्या नजर आना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता तब तक फल। ते ਅਸੀਂ जिस्मानी जिंदगी च मरते ही नहीं। ਅਸੀਂ कहते हैं कोई साढ़े नाल करके जाए किथे। हाँ, हम कहते हैं कि फलां ने मेरे बारे में ये कह दिया, जब तक हम उसका बदला न ले लें हम उस चीज से हटते नहीं है। हमारी जिंदगियों के अंदर वही पुरानी बाओं अजदाद से चली आ रही पुरानी रस्में भी हमारे साथ साथ ही चल रही होती हैं। हमारी जिंदगी के अंदर जो गुनाह तौबा से पहले होते हैं, तौबा के बाद भी हमारी जिंदगी के अंदर वही गुनाह होते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी जो है वो फलों से लदी नहीं होती, वो फ्रूटलेस होती है। और कलाम में लिखा है कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सारा क्या लाती है। इसका मतलब है अगर यीशु मसीह के साथ जुड़े नहीं है, शख्सी तौर पर अपना आप उसको दिया नहीं है, तौबा नहीं की है, तो फिर झाड़ी बूटी है। हाँ, फिर क्या है? झाड़ी बूटी। अक्सर खेतों के अंदर, मैदानों के अंदर ऐसे घास उगी होती है। फिर हम अपनी कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि हमारी तौबा का लेवल क्या है। हम खुद को चेक कर सकते हैं कि रूहानी तौर पर हम किस सांचे के अंदर ढल रहे हैं। अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे कि हम कितने फलदार ठहरे हैं। क्योंकि वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब गेहूं का दाना जमीन पर गिरता है और गिरकर मर जाता है, मरने के बाद उसकी जिंदगी के अंदर फल का प्रोसेस शुरू होता है। मरने के बाद उसकी जिंदगी के अंदर फल लगता है, मरने के बाद वो फ्रूटफुल ठहरता है। मगर अफसोस की बात, हम मरते ही नहीं। कौन कौन मरना चाहता है? हाँ, कई रूहानी तौर पर मरे दे, फिर भी रोना बोता पाते कि मैं तौबा याफ्ता हूं। मगर जब हम उनकी जिंदगी को चेक करें तो उनकी जिंदगियों के ऊपर फल नहीं होते। जरा मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मत्ती की इंजील 13वां बाब और उसकी 26वीं आयत। यहां पर दो किस्म के बीजों का बयान करता है वो जी। ये तमसील जरा पढ़ेंगे मत्ती की इंजील। अभी अपने आप को चेक कर लें कि आपकी तौबा कौन सी है। कड़वे दाने भी होते हैं। हाँ, घरों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, खानदानों के अंदर, इलाकों के अंदर कई मीठे दाने होते हैं, कई कड़वे होते हैं। लेकिन खुदा सबको देख रहा होता है। आज हमारे दरमियान भी हम जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम में से बथेरे ऐसे हैं, ये दो हाथ मैं जाहिर करूंगी। बस जब पत्तियां निकले और बालें आए तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा भरने दो, और कटाई के वक्त जब मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके खट्टे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। आमीन। यहाँ पर यीशु के शागिर्द ये तमसील कही गई है दानों के बारे में, गेहूं के बारे में और कड़वे दानों के बारे में। यहाँ पर एक किसान के साथ सवाल किया जा रहा है और वो कहते हैं कि जो तूने हमारे मालिक, जो तूने खेत लगाया है उसके अंदर तूने तो बहुत अच्छा बीज बोया था, मगर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये बीज बढ़ रहा है, पौधे बाहर निकल रहे हैं, मगर इनकी जो जिन्स है, जो इनकी किरदार है, जो इनके रवैये हैं, जो इसकी ब्यूटी है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि साथ में कड़वे दाने भी निकलना शुरू हो गए।
तो वो कहते हैं क्या तू चाहता है कि हम इनको जाके उखाड़ दें? तो वो कहते हैं नहीं, अभी रहने दो, अभी वक्त नहीं आया कि इनको उखाड़ कर फेंका जाए, क्योंकि अगर तू कड़वे दानों को निकालेगा तो इसके साथ गेहूं भी, जो अनाज है, जो खाने के काबिल है, वो भी साथ में खराब होगा। वो कहते हैं अभी रहने दो। इसी तरह से कलीसिया के अंदर हम बहुत सारे ऐसे हैं जो कड़वे दानों की मानित हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत को नहीं रखा, जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगियों के अंदर रूह के फलों को आने नहीं दिया, और वो स्टिल उसी जगह पर जो सेकंड हमने देखा है शुभ, जिसका मतलब है फिर वापस आना, यानी गुनाह की तरफ से हट जाना, वो सिर्फ हटे ही हुए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर से उन गुनाहों को नहीं निकाला। उनकी जिंदगियां अभी भी इन कड़वे दानों की मानित है, जो स्टिल उधर की उधर ही है। मैं अभी भी चाहता हूं कि इनको रहने दो, ताकि कटाई के वक्त तक इनकी शेप और निकले। अक्सर शेपलेस चीजें हमें पसंद नहीं आती। हम अपने लिए कोई चीज चूज कर ले हो तो हम देख रहे होते हैं सबसे खूबसूरत चीज मेरी हो। इसी तरह से खुदा भी कह रहा, अभी ठहर जाओ, अभी रहने दे, अभी मैं देख रहा हूं कि इनकी शेप किस तरफ जा रही है, अभी मैं देख रहा हूं कि ये किस तौर से बढ़ते हैं, अभी मैं देख रहा हूं कि इनके अंदर मेरी मोहब्बत है कि नहीं, अभी मैं चेक कर रहा हूं कि ये मेरे कलाम के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं, अभी मैं देख रहा हूं कि ये मेरे 10 हुक्मों पर अमल कर रहे हैं कि नहीं, अभी मैं देख रहा हूं कि ये जो कलाम सुनते हैं, सुनने के बाद उस पर कैसा अमल करते हैं, अभी मैं इनकी जिंदगियों को चेक कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि इनकी जिंदगियां किस दाने की मानित है। मैं इनको वक्त देता हूं, अभी भी छोड़ देता हूं, ताकि ये अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकें और अपने अंदर की कड़वाहट को खत्म करके रूह के मुआफिक चले और रूह के मुआफिक फल भी लेकर आए। आमीन। बस तौबा के मुआफिक कहते, तौबा के मुआफिक फल लो। अक्सर हम कहते तौबा की है, बड़ी खुशी खुशी बता देंगे सब, हाँ जी तौबा की है। कई कहते हैं सोच रहे हैं, तो मैं अक्सर कहती हूँ सोची पे आते बंदा गया, कोई पता नहीं, क्योंकि वक्त करीब आ चुका है। दुनिया के हालात, मौसमों के हालात, फितरत के हालात, कुदरत की चीजें, सबके अंदर खुदा का जलाल जाहिर होता है, मगर ये उसके आने की अब पेशन गोई कर रही है कि वक्त क्या है। अगर बेफल जिंदगी हुई तो काट डाली जाएगी। बेफल चीजों को खुदा पसंद नहीं करता। वो कहता है जब गेहूं का दाना गिरता है तो अपने साथ और 60 से 100 बीजों को क्या करता है, पैदा करता है वो। इसी तौर से जिस तरह से यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जब जमीन पर गिरे गुनाह के लिए के बनी नो इंसान के लिए कफारा दे, तो यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर आए। जमीन पर आकर उन्होंने अपने आप को पेश किया, और उन्होंने इस तमसील को इसीलिए बयान किया क्योंकि इसके मरने के बाद फौरन बाद उसने अपने मरने की पेशन गोई भी कर दी। उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा, इस हैकल को जब ढा दिया जाएगा तो मैं 30वें दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और उसने अपने आप को पस्त किया, उसने अपने आप को मारा, और वो मौत के घाट के अंदर उतारा गया। यीशु मसीह के बॉडी के ऊपर बहुत सारे जख्म लगे, और इस बीज को मसला गया, तोड़ा गया, उसके ऊपर बहुत सारा जुल्म किया गया, और उसको मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, और उसको कब्र के अंदर रख दिया गया। और यीशु मसीह जब जमीन के अंदर पाताल के अंदर गए तो उसने बहुत सारे मुर्दों को अपने साथ जिंदा उठाकर आसमान पर ले गए। हालेलुया। यीशु मसीह की जो रोया है वो इसके साथ टैली करती है कि वो सिंगल आया और मर गया, और जब वो मरने के बाद नीचे पातालों के अंदर गया तो उसने बहुत से रास्तबाज मुर्दों को जिंदा करके आसमान की बादशाहत में पहुंचा दिया। हालेलुया। ये तौबा का अमल है, ये मरने का अमल है। और यीशु मसीह भी अगर कंप्लीटली ना मरते, आपको पता है कि यहूदियों ने अपने कानून के मुताबिक हर तरह से उसको चेक किया, उसकी पसली में भाला मारा, और भाला मारने की वजह
अंदरों पानी निकल आया तो वो जान गए कि इसकी क्या हो गई है, इसकी डेथ हो गई है, ये मर चुका है। मगर मरने के बाद बहुतों को अपने साथ आसमान पर ले गया। हालेलुया। बस तौबा के मुआफिक, बस तौबा के मुआफिक आपकी तौबा पक्की होनी चाहिए, क्योंकि पहली तौबा कौन सी है? नाहूम, जिसका मतलब है सिर्फ पछताना। दूसरी तौबा का मतलब है शुभ, यानी कि फिर लौट आना। और तीसरी तौबा का अमल जो है वो है नीयत और रवैये की तब्दीली, जो हमारी जिंदगियों के अंदर जबरदस्त काम करती है और हमारी जिंदगियों के अंदर रूह के फलों को लगाती है। जरा फलों को निकालें, गलतियों का खत। अभी हम रूह के फलों को देखेंगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट और लूंगी। मेरे पीछे बोले, बस तौबा के मुआफिक फल लो, बस तौबा के मुआफिक फल लो। जी, अभी हम रूह के फलों की तरफ बढ़ेंगे। गलतियों का खत उसका 5 बाब और उसकी 22वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। अब यहाँ पर रूह के फलों के बारे में पौलुस रसूल बताते हैं कि रूह के फल कौन कौन से हैं। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। आमीन। यहाँ पर रूह के फल कौन कौन से हैं? पहला फल कौन सा है? कोई नहीं, मोहब्बत खुदा में बोलो ना। पहला फल कौन सा है? पहला फल मोहब्बत है। हम अपनी जिंदगियों के अंदर चेक करें कि खानदानी तौर पर ये फल कितना बढ़ रहा है। ये कोई कड़वा बीज तो नहीं है। हम कहते तो हैं हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है, मगर चेक करें उसका लेवल क्या है। क्या अपनी माँ ने दूसरे से मोहब्बत रखते हैं? क्योंकि वो कहते हैं बस तौबा के मुआफिक क्या लो, ते पहला फल क्या है मोहब्बत। किससे? बस अपनी फैमिली तक महदूद है। हम आज अगर जिंदगियों के ऊपर गौर करें, अपनी जात के साथ जुड़े हुए मामलात के साथ हम मोहब्बत करते हैं। अपनी फैमिली मेंबर्स तक ये मोहब्बत कायम है। और अक्सर फैमिली के अंदर भी मोहब्बतें नहीं है, दिल से जो दूर है, एक दूसरे के लिए कड़वाहट है, एक दूसरे के लिए हसद है, एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ है, एक दूसरे की ऐबजोई है। कहीं पर मोहब्बत का नामो निशान भी नहीं है। और हमारी जिंदगी रूह के फलों से बिल्कुल खाली है। मगर वो आज क्या कहता है? बस तौबा के मुआफिक। अगर हकीकी खुशी की बात करें तो चेहरों पर हमने वैसे ही मुस्कुराहट रखी होती है, अंदर हमारे दिल गम से निढाल होते हैं। हो सकता है कई चर्च में भी सुबह लड़के आए हो सकता है कई खफकी के अंदर आए हो सकता है किसी की कोई चीज ना मिल रही हो तो उसने खफकी का इजहार किया हो। मैंने आज जो सूट पहनना था वो नया था, उसका दुपट्टा नहीं मिला, थोड़ी सी मेरे अंदर खफकी आई। खुदा कहते हैं मोहब्बत फालनी में। मैंने फौरन उस चीज को डांटा और मैंने कहा खुदावन ठीक है, जो है वही ठीक है। तो कभी कभी हम चीजें ना मिलने पर भी अपनी मोहब्बत को खत्म कर देते हैं, रिश्तों के अंदर से उस चीज को मारना शुरू कर देते हैं। खुशी का नामो निशान नहीं होता और हम आकर इजहार कर रहे होते हैं कि हम बहुत खुश हैं। हाँ? और कभी कभी हमारी जिंदगियों के अंदर रूह के फलों का इजहार ही नहीं होता। तीसरा फल कौन सा है? जिदा कोई ना निशान। तीसरा फल कौन सा है? इत्मीनान। चौथा फल तौबा तहम्मुल, और वो हम नहीं। अच्छा, पांचवा कौन सा? कितने लोग मेहरबानी करना जानते हैं अपनी जात से अलावा किसी दूसरे के लिए? है मेहरबानी का फल? हाँ, जानते सब है पर अमल नहीं करते। आगे पढ़े। हाँ, नेकी। नेकी का नजरिया जरा चेक करेंगे। हमारी नेकी का नजरिया क्या है? हमारी नेकी का नजरिया ये है कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा है तो हम उसके साथ जरा जा किसी ने डिंगा मारे असी की कर हमारी नेकी, हमारा नेकी का फल ही चढ़ जाता है।
दुश्मन आता है मोहब्बत के फल को चुरा कर ले जाता है, दुश्मन आता है वो खुशी के फल को चुरा के ले जाता है, दुश्मन आता है वो इत्मीनान के फल को चुरा कर ले जाता है। और ईमानदार इसी वहमो गुमा में होता है कि मेरी जिंदगी फलों से लदी हुई है, मगर वो एक एक करके सारे फलों को चुरा के ले जाता है। और फिर क्या करता है, उस दरख्त के पत्ते भी झड़ जाते हैं और दरख्त जो है वीरान और सुनसान हो जाता है। और फिर रास्तबाज की जिंदगी के अंदर कड़वे बीजों का इजहार होता है। जब खुदा चेक करता है कि इसकी जिंदगी के ऊपर कौन कौन सा फल है, तो खुदा को वो फल, हम अंदर से इत्मीनान में होते हैं कि ये फल मेरी जात पर लगे हुए हैं, मगर अंदर से खुदा जानता है कि वो फल अबलीस चुरा कर। अगर आपने अभी तक अपनी जिंदगी के अंदर तौबा का अमल नहीं किया, आपने अपनी नीयत और रवैये की तब्दीली को इख्तियार नहीं किया, तो आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे। क्योंकि वो कहता है गेहूं का दाना जब जमीन में गिरता है तो बहुत सारा फल लाता है। क्या आप किसी की जिंदगी को बचाने का जरिया बने हैं, या आपने अपनी जिंदगी के ऊपर रास्तबाजी पाकीज़गी का फल लगाया है? आंखें बंद हो जाएं और अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। चंद मिनट हम दुआ करेंगे, क्योंकि वो कहता है बस तौबा के मुआफिक फल नहीं। बेफल जिंदगी बेमायनी जिंदगी होती है। खुदा चाहता है कि आप बढ़े। दुनिया के अंदर वाहिद खुदा का रिश्ता है जो आपके फलों को देखकर खुश होता है, जो आपकी बढ़ोतरी को देखकर खुश होता है, जो आपको कामयाब देखना चाहता है, वो आपका आसमानी बाप है। आइए चंद मिनट उसकी हजूरी में गुजारेंगे। प्रेज गॉड। मेरी दरख्वास्त है यासिर भाई से कि वो सामने आए, हर एक आंख बंद हो जाए और दुआ मांगना शुरू करें। अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की, सिर्फ पछताते हैं और पछता के चले जाते हैं, अपनी जिंदगी पर गौर करें। और अगर आपने तौबा कर ली है तो चेक करें कि आपकी नीयत और रवैये के अंदर कितनी तब्दीली है। क्या आपकी जिंदगी के अंदर रूह के फलों का इजहार है? अपनी जिंदगी को गौर से देखना शुरू करें। अभी कोई किसी को मत देखे। किसी ने रुपए पैसे के लिए दुआ नहीं करनी, किसी और बरकत के लिए दुआ नहीं करनी, अभी सिर्फ अपनी शख्सियत के लिए दुआ करनी है। हालेलुया। यासर भाई सामने आ जाए, आंखें बंद हो जाएं और सिर्फ अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या आपकी जिंदगी खुदा के फलों से लदी हुई है? रूह के फल आपकी जिंदगी के अंदर हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ये वक्त आपका है। आइए अपने हाथों को बुलंद करेंगे और हम खुदावंद की हजूरी में प्रस्तुत करेंगे, अपने आप को पेश करेंगे कि खुदावंद हमें अपने कलाम के मुताबिक चलना सिखाए। और जिस तौर से वो तौबा का अमल चाहता है, हम उस तौर से अपनी नीयत और रवैये की तब्दीली को रखते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर फलों को ला सके। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, हिल्म और परहेजगारी के फलों से हमारी ज़िंदगियाँ लदी हों। अगर आपकी ज़िंदगियों के अंदर रूह के फल होंगे तो रूह की नेमतें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर से ऑपरेट होंगी। और अगर आप अभी तक सिर्फ रूह की नेमतों को मांग रहे हैं और आपकी ज़िंदगी फलों से बिल्कुल खाली है, आपकी ज़िंदगी के दरख्त फलों से बिल्कुल खाली है, तो रूह की नेमतें ऑपरेट नहीं हो सकती। अगर चाहते हैं कि खुदा आपको अपने जलाल का वसीला ठहराए ज़मीन पर, तो आए मांगे कि हे खुदा मुझे अपने रूह के फलों से भरना शुरू कर। मोहब्बत के फल से, खुशी के फल से, इत्मीनान के फल से, तहम्मुल, मेहरबानी, हिल्म और परहेजगारी से मुझे खुदा भरना शुरू कर, ताकि मैं रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजार सकूं, मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। मेरी आंखों के अंदर तेरी पाकीज़गी हो, मेरी सांसों के अंदर तेरी पाकीज़गी हो, मेरे ख्यालों के अंदर तेरी पाकीज़गी हो, मेरे जज्बात के अंदर तेरी पाकीज़गी हो।
के भटका चला जाओ, भटती चली जाओ। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। मुझे छू खुदा मुझे छू मुझे छू खुदा मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा मुझे छू मुझे छू खुदा मुझे छू आलूदगी ना जिस्म की रूह की तू दूर कर दे आलूदगी ना जिस्म की Yes, glory. रूह की तू दूर कर दे खौफ यहोवा, खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे खौफे यहोवा हो कामिल आइए सब तू अपने मसीह में। पाकीज़गी से तू भर पाकीज़गी के लिए तो खौफ मांगे। भर मुझे भर मुझे भर मुझे भर खुदा मुझे भर मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू आइए मिलकर कहेंगे, छू मुझे, छू। मुझे छू खुदा मुझे Praise God, hallelujah. मट्टी मकुमार जैसे हाथों से अपने सवारे
बाल सुनहरी है, उसका चेहरा खूबसूरत है जो नूरानी है। आंखें हैं खुदावन जो तेरी जात के अंदर से पाक है। मुझे भी पाकीज़गी से भरना छू कर, छू मुझे छू, मुझे छू Yes. Yes. जैसे